Hello, friends. Welcome to Knowledge Odyssey, the shows where we explore the concepts and share the insights on various business topics. I'm your host. My name is Sushan, and today we are diving into the fascinating world of international trade, especially import and exports. Whether you are an entrepreneur looking to expand your market as seasoned business owner, navigating global trades, this episode will provide you a valuable insights. I'm excited to join my expert today, which is Sujit Jemse from Mumbai, who has a 25 years experience in international trades, logistics, and customs. Thank you so much for joining today. Hello, friends. Thank you very much, Sushant, for having me over here. And it's my pleasure being here. How are you? I'm good. Thank you. How are you, Sujit? I'm fine, thank you. तो हम हिंदी मराठी इंग्लिश सब में बात English, करेंगे. yeah. So We be will talk in comfortable. all the languages we know. Yes. So these episodes will give more insights to the viewers who are watching and who are looking to start their import-export business. So I will ask you to give a brief introduce about the topic of import and export, especially Yeah, what is import and export. yeah. Basically, import and export is whenever you think of import and export, everyone it comes into mind like we are sending goods outside India and bringing something to India from all over the world. It's like whatever comes in is import and whatever goes out is export. In the very layman's language, this is the Okay. basic thing. Like whatever we ship from India to various part of world, that will be called as exports. And whatever we bring from various part of worlds into India, it will be called as imports. This And is like the basic definition. okay. And why do business engage in import and export? Yeah, business will engage in import and export because this, I think, I am into this since 2000, and I think this is the only business which will not stop due to any situations. Like it might go low, थोड़ा कम होगा, ज़्यादा होगा, steady होगा, Mhm. but it will not stop because, as you know, globally everything is not manufactured in every part of the world. So there has to be some exchange. We can call it as a a previous age like barter system sort of Mhm. like we to some countries we export some products or services from India, and in return from that country maybe we are importing some other things which are not here in India or not in that particular quantity in India. So this trade, I think this trade will never stop. Mhm. So this is how, like, this is the business. Like we are not going to stop eating. It is, and we are not going to stop buying food. So it is like this. Like this business is also not going to stop any time. Whatever happens. करेक्ट. तो ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है, बट हाउ डू बिजनेस बिगिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्यों ये करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों चलता है दुनिया में? Then that is the same thing. Like I like what I told you now. Like say for example, to be very specific, आज की we consider it in one sector like automobile for example. Like इंडिया में कुछ साल पहले मर्सिडीज नहीं मिलती थी या बीएमडब्ल्यू नहीं मिलती थी, तो यहाँ पे लोगों के पास पैसे है और दे वांटेड टू हैव ए बीएमडब्ल्यू, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, करेक्ट. यार अमेरिका में एक पर्टिकुलर ब्रांड मिल रहा है जो आज भी इंडिया में नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको उसको हम्म. चाहिए वो गाड़ी। यहाँ पे लोग हैं जिसको जिसको इट इज लाइक आई वांट टू हैव ए कार which I am going to be the first owner of that car in India. No, करेक्ट. people have that kind of money and people have that kind of thoughts here. So वो क्या कर सकता है, तो उसको तो एक ही ऑप्शन है, इंपोर्ट करो वो गाड़ी वो कंट्री कंट्री से। सो दिस इज हाउ, ये हो गया। बट लाइक रिसेंटली, लाइक आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लाइक 2 साल पहले या 3 साल पहले ऑनियंस बहुत रेट बढ़ गया था इंडिया में। फॉर एग्जांपल 150 160 तक पहुंच गया था पर केजी, बिकॉज इट इज ए सप्लाई एंड डिमांड थिंग। ऑनियन हुआ नहीं था, अपना क्रॉप खराब हो गया था। इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑनियन तो चाहिए, हर रोज खाने में सबको ऑनियन चाहिए, और इतनी बड़ी अपनी कंट्री है और आबादी है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इन दैट केस व्हाट वी डिड, वी इंपोर्टेड ऑनियंस फ्रॉम इजिप्ट एंड वेर एवर ऑनियंस आर प्रोड्यूस,
and those onions were far much cheaper than what the local were there. इंपोर्ट किया हुआ ऑनियन 45 रुपए किलो में आ रहा था, लैंडिंग कॉस्ट, और यहाँ पे 150 रुपए किलो बिक रहा था. तो पीपल मेड लॉट ऑफ मनी इन द इम्पोर्ट्स ऑफ ऑनियन ऑल्सो. बट सोचने की बात यही है कि वॉट एवर लाइक वॉट एवर आइटम और वॉट एवर पर्टिकुलर थिंग, वो कुछ भी हो सकता है, सुई से लेके प्लेन तक कुछ भी हो सकता है, जो हम लोग के पास नहीं है वो हमारे पास एक ही ऑप्शन है. अभी राफेल भी हमने बाहर से इंपोर्ट ही किया ना, वो कितने करेक्ट. करोड़ों का था. लेकिन वॉट एवर इज नॉट इन आवर कंट्री वी कैन इम्पोर्ट इफ इट इज अवेलेबल समवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो ज्यादा तो हमारे दैट कंट्री दैट में है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वेरी गुड, यस, दैट इज द करेक्ट, ओनली थिंग. करेक्ट, करेक्ट, And करेक्ट. that is the reason I told you, like it is still like in the mm, stone ages kind of thing, like barter system जो हम कर रहे थे, ये अभी भी barter system है, but it is on international level. करेक्ट, करेक्ट. जो पहले डोमेस्टिक होता था, गांव गांव में होता था, अब वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल पहले से International, होता yeah. था. इट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की जो गांव में होता था वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता था. हाँ, बड़े लेवल पे हो रहा है बस, बड़े बाकी लेवल क्या. पे होता है. करेक्ट, करेक्ट. तो इस इट इज बिजनेस में कौन उतर सकता है और कौन नहीं उतर सकता है? कौन नहीं उतर सकता है का तो कोई जवाब नहीं है. करेक्ट, बिकॉज एनीवन हु इज विलिंग टू एंटर इनटू दिस बिजनेस, इट इज ओपन, लाइक देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, कोई करेक्ट. भी आ सकता है. तो वो स्टूडेंट हो, घर की महिलाएं हो, जॉबलेस पर्सन एग्जैक्टली, हो, एग्जैक्टली. जॉब वाला हो, बिजनेस वाला हो, कोई भी आ सकता है. कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है वो. इसमें अभी कोई ये स्पेसिफिक प्रोफाइल की जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी आ सकता है. एक विजन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, करेक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि उसके पास कोई लेने वाला हो या कोई बेचने वाला हो, खरीदार हो या कोई खरीदने वाला हो, या तो कोई बेचने वाला हो. दीज आर द ओनली करेक्ट, टू थिंग. दो ही पार्टी है इसमें, एक तो इम्पोर्टर है और एक एक्सपोर्टर है. करेक्ट. और जैसे आपने बोला अभी कि लघु महिला लोग भी कर सकती है, हाउस वाइफ भी कर सकती है. देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल. लिज्जत पापड़ घर से शुरू हुआ था, आज लिज्जत पापड़ कई कंट्री में एक्सपोर्ट होता है. इट इज करेक्ट, स्टिल लाइक छोटे से बिजनेस से ही वो पापड़ इतना बड़ा हो गया है आज की तारीख में. करेक्ट, करेक्ट. हमारे आंखों के सामने हो गया है, समझो. यस, यस. सो इसमें जब हम लोकल डीलिंग करते हैं तो वेरी इजी, चैलेंजेस कम होते हैं. चैलेंजेस होते हैं पर उतने कम होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट? See, challenges are like, I'll tell you, it depends Especially on item common to item. challenges. Maybe there are different challenges, but common challenges. कॉमन चैलेंजेस तो आपको यही होंगे कि जेन्युइन पर्सन होने चाहिए दोनों साइड. जो हम्म, माल दे रहा है वो हम्म, जेन्युइन माल दे, और जो माल ले रहा है वो जेन्युइनली माल लेके पैसे दे. दीज हम्म. आर द ओनली कॉमन चैलेंजेस कि जिसमें हो सकते हैं. बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टम्स है, पेपर वर्क है, डेट कैन बी मैनेज, सब कुछ हो सकता है. आपने मुझे इंडिया से कुछ माल भेजा, हम्म, मैंने अप्रूव किया, मैंने वो माल लेके आपको पैसे भी देने चाहिए. देन देर आर हम्म. सर्टन प्रोसीजर्स वी कैन डू इट डायरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. पर्सन टू पर्सन, बैंक टू बैंक, कंपनी टू कंपनी, और इट कैन बी बाय एलसी. वहां पे बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम ये एक जो डील होगी पहले, आपकी और मेरी एक डील हो गई कि भाई आप ये एक पर्टिकुलर चीज मेरे को एक्स अमाउंट में दोगे और मैं वो एक्स अमाउंट में लेने को तैयार हूँ. तो वो करेक्ट, डील का पेमेंट टर्म्स कैसे होगा, और वो पेमेंट कितना पहले जाएगा, कितना बाद में जाएगा, पहले पूरा जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्टीज हाउ दे आर गोइंग टू डील इट. तो दीज राइट, आर द राइट. चैलेंजेस. बाकी द दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि आप जो कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट हम्म, कर रहे हो, वो लाने से पहले आपको देखना है कि उसका पर्टिकुलर मार्केट पोजीशन क्या है. हम्म. आप ला रहे हो, अभी बहुत सारा लोग कुछ भी उठा के लेके आते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि वो लाने के बाद में उसका क्या होगा, क्या करना है. तो मैंने खुद भी उसमें बहुत सारे धोखे खाए हुए, तो आई अंडरस्टैंड दैट ये ज्यादा स्टडी करना जरूरी है, रेदर देन गेटिंग इनटू ए रश एंड चलो चलो ये बहुत अच्छा है, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन ये करते वो करते. यू शुड नॉट गो, एटलीस्ट फॉर द बिगिनर्स यू शुड नॉट गो लाइक दैट. करेक्ट. आज फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, एक फर्म है नासिक की, हम्म, फार्मर की, जिन्होंने 6 करोड़ रुपीस का लॉस झेला जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्मॉल मिस्टेक इन द ओके. डॉक्यूमेंटेशन इन द एक्सपोर्ट. बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट. बट वो लोग रुके नहीं. देन दैट पर्सन, आई रियली एडमायर हिम. उन्होंने और 10 फार्मर को इकट्ठा किया. आज की तारीख में दे आर मोर देन 100 फार्मर्स एंड नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग इनटू 42 कंट्रीज ऑल ओवर यूरोप एंड एवरीवेयर.
42 countries they are exporting the grapes from Nasik. Okay. एट द सेम टाइम नासिक में कुछ ऐसे भी शेतकरी होंगे जो रो रहे, मतलब जिनका कुछ बिक नहीं रहा है, जिनका कुछ हो नहीं रहा है, बट दिस पीपल लाइक हु आर जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप, और वो पूरे इकट्ठा, देयर इज नो मिडिल मैन, डायरेक्ट फार्मर इज एक्सपोर्टिंग. सो हम्म. ऐसा है, नाउ दे ऑल आर करोड़पति, लाइक कोई तो भी. बेसिकली हाँ. अगर माल देने वाला भी क्वालिटी वाला माल दे रहा है और जो वहां पे पैसे दे रहा है वो भी पैसे ठीक से दे रहा है, इसके हम्म बावजूद जैसे शिपिंग में डिले हो जाना, कस्टम क्लियरेंस हम्म. ना मिलना, ये भी चैलेंजेस है, तो इसको ओवरकम ऑफ कैसे कोर्स, किया ऑफ जा कोर्स, सकता है? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है. हम्म. बट आई विल टेल यू, इफ इट इज ए पेरिशेबल आइटम, हम्म. फिर ये चैलेंज बड़ा महंगा पड़ सकता है अगर कस्टम्स में आपका डिले हो गया, क्योंकि हमारे आपका आइटम व्यूवर्स को आप पेरिशेबल. बताएं कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल क्या होता है? हाँ, आई एम सो सॉरी. पेरिशेबल वो है जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या कुछ पैकेटेड आइटम्स हो गए जिसके पेरिशेबल जो ऊपर खराब एक हो जाते हैं कुछ समय के खराब बाद, हो जैसे जाएगा, फ्रूट्स और खराब हो इसका जाते हैं, वैलिडिटी है, इसका वैलिडिटी शेल्फ लाइफ जिसकी है, इसका एक्सपायरी है, वैलिडिटी है. हाँ, जिसका एक्सपायरी शॉर्ट टाइम के लिए है. शॉर्ट टाइम के लिए। कुछ करेक्ट। कुछ भी पैकेटेड आइटम भी जिसका एक्सपायरी 3 महीने में होने वाला है, और उसका शिपिंग टाइम ही सपोज 1 महीना है, तो उसके पास बचे बेचने के लिए सिर्फ 2 महीने, तो 2 महीने में अगर 1 महीना उसका कस्टम क्लियरेंस में निकल जाएगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ओके ओके So ओके। you have to take care everything before you हम्म. choose the item and before you go for importing or exporting that particular item. अगर आप गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, गाड़ी आएगी 1 महीने बाद भी क्लियर होगी तो भी आप उसको चलाने वाले हो, कुछ खराब नहीं होने वाली है. बट हम्म. उसका पहले आपको स्टडी करना है कि भाई वो एक पर्टिकुलर चीज आ रही है तो उसका फिर इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगा, उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, एंड देन वो उसका वैल्यू जो है, इट इज वर्थ इट और नॉट. हम्म. वैसा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, हमको लगता है अरे ये यहाँ पे बहुत सस्ती मिल रही है, यहाँ पे 10 रुपए में मिल रही है, हमारे यहाँ पे वो 20 रुपए में है, और आप उसको उठा लोगे, लेकिन जब वो इधर आएगी एक्चुअली, तो हो सकता है वो 20 रुपए के ऊपर चली जाए, अगर आप ओके। उसको प्रॉपरली वर्कआउट और स्टडी नहीं करे तो. करेक्ट करेक्ट। सो दैट हम दैट 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 यू हैव टू टेक केयर. ओके, तो हम इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड कर सकते हैं व्हाइल एक्सपोर्टिंग द गुड्स? व्हाइल एक्सपोर्टिंग द गुड्स, आपको यही है कि यू हैव टू चेक द जेन्युइनिटी ऑफ द बायर, हम्म. and if possible you have to meet the buyer, visit the company, you have to have all the know how of the buyer. और और अगर आपका पहला शिपमेंट है, हम्म. तो पहले शिपमेंट में आपके थोड़े एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो वाइल कोटिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कस्टम क्लियरेंस एंड फ्रेट फॉरवर्ड ऑन ए बिट हायर साइड, हम्म. क्योंकि फॉरवर्डिंग का जो रेट्स होता है शिपिंग कंपनी का, वो भी आजकल फ्लक्चुएट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको माइनस करके ही कोट करें तो ज्यादा बेहतर होता है. करेक्ट एंड करेक्ट। सेकेंड थिंग, अगर आप एलसी पे करते हो तो यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी माइन्यूट क्लॉजेस ऑफ द एलसी. एलसी में सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखी रहेगी कि हम तुम्हारा माल कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं इफ इट इज नॉट अप टू द क्वालिटी. एंड अगर आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, बट वहां जाने के बाद में अगर वो बोलते हैं नहीं वो क्वालिटी जो हमने देखी थी नहीं है, देन यू हैव नो हम्म. वर्ड टू से. इट इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो माल करेक्ट। रिजेक्ट कर सकता है, आपको पूरा लॉस हो सकता है. सो तो एलसी अगर आप खोलते हो, एलसी के थ्रू अगर आपके पेमेंट टर्म्स है, हम्म. you have to take care of each and every minute fine prints in the LC. ओके। फिर उसमें बैंक भी आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता वहां पे, और ये ऐसे ही होता है, एलसी में बहुत सारे फाइन प्रिंट्स होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर. एंड फॉर बिगिनर्स मेरा एडवाइस यही होगा कि आप छोटा से चालू करें, हम्म. पूरा कंटेनर ना करें, पहले छोटा करें, छोटा शिपमेंट करें, और उसका जहां तक हो सके बायर से बात करके कन्विंस करके 100% एडवांस लेने की कोशिश करें. चाहे तो बायर को बोल सकते हैं यू सेंड योर पर्सन और योर रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट द गुड, एंड लेट हिम बी श्योर दैट द गुड्स आर लोडेड ऑन द वेसल. आपको इधर डॉक्यूमेंट दिखेगा, आपको इधर पूरा प्रोसेस दिखेगा, एंड देन यू विल बी श्योर कि भाई माल चढ़ गया है. करेक्ट। सो बिगनर्स 100% तो मुझे नहीं पता, बट अगर 50% भी अगर उसको मिल रहा है तो आई थिंक इट्स गुड टू गो अहेड, राइट? सेफ रहेगा वो भी। या एट सम पर्टिकुलर थिंग इट अच्छा। इज ए फेयर प्राइस, बट अगर शिपमेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है हम्म. तो आई एटलीस्ट वो स्टिल अपनी प्रिफर. कॉस्टिंग रिकवर कर ले, Yes, मैन्युफैक्चरिंग that was कॉस्ट या that जो भी that है। was the exact thing I was supposed to say. या। कि एटलीस्ट उसका जितना पैसा उसने डाला है, हम्म. जितना उसका लागत है, मुद्दल है, उतना पैसा उसको एडवांस आया है, तो ही इज प्लेइंग सेफ. करेक्ट कि भाई करेक्ट। उसका कोई लॉस नहीं होगा एट एनी 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 पॉइंट.
ऐसा नहीं कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट द Mm-hmm. बायर, Mm-hmm. और ऐसा नहीं, बट दिस थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर एट द फर्स्ट शिपमेंट, बिकॉज एक बार आपका शिपमेंट चालू हो गया, रेगुलर हो गया, देन इट इज लाइक यू आर बिल्डिंग रैपो विद द बायर। एक बार Correct, आपका correct, रैपो हो गया तो उसके बाद में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आती रहते हैं, मतलब वो फिर वो सर्कुलेशन में पैसा भी आ जाता है आपका। correct. बट So, वो पहला जो आइस ब्रेक करना है, दैट इज mm-hmm. इम्पोर्टेंट, वही एक बड़ी बात होती है, एंड एवरीवन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल थिंग ओनली। Correct. ऐसा कोई, मैंने तो अभी 20 साल में ऐसा कोई नहीं देखा जिसने पहला ऑर्डर ही 10 15 20 कंटेनर कर दिया। दैट इज Mm-hmm. रेयर थिंग। Correct. So, और Mr. कोशिश Janse, करके, mm-hmm. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, Sorry, sorry, go ahead, go ahead. मेरा ये था कि कोशिश करके ये होना चाहिए कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर Mm-hmm. कंट्री में, तो वहां पे अगर आपका कोई बंदा हो जो मतलब बायर का ऑफिस विजिट कर सके Mm-hmm. पर्सनली। अभी आजकल सब कुछ मेल और जूम पे हो गया, बट टेक्नोलॉजी के बोलते हैं ना, फिर वो आदमी वाकई में उधर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, Correct, उसके एड्रेसेस क्या है क्या नहीं, सब कुछ वर्चुअल हो जाता है। माल पहुंचने के बाद correct, में वो वर्चुअल गायब हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसको। correct. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टू रिकवर द मनी फ्रॉम सम अदर कंट्री। लाइक मैंने खुद, मेरे काफी पैसे मेरे, लाइक मेरे एजेंसी नेटवर्क है तो मेरे Mm-hmm. काफी एजेंट लोग ने मेरे Mm-hmm. पैसे डुबाए। अभी वो 2,000 2,500 डॉलर के लिए मैं किधर साउथ अफ्रीका में जाके वो Correct. पैसे वसूल That नहीं कर was your सकता। initial phase when you started your journey. Yeah, but it is Yeah. still the same because Yes. like if you do some trade with the agents, it is like you have some commission or you have Correct. some agency charges which are very minimal. Mm-hmm. Every shipment में वो आपको $50 नहीं भेज सकता, तो Correct. इट Correct. Correct. एक्यूमुलेट एंड व्हेन इट बिकम्स ए बिग, फिर उसने नहीं दिया तो आप उसको लिटरली कुछ नहीं कर सकते। देयर आर लाइक एसोसिएशन है, उसको मेलबाजी होगा, बट अगर It एट will एनी take गिवन time. पॉइंट It उसने will बोला, take time. यस यस Correct, यस correct. यस, इट विल So, टेक टाइम। Mr. Janse, I know you are basically located in Vashi, Mumbai, and you have very less time. You have given very valuable time from your schedule. No, 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 it was I good will to go talk with with the you. last question, which is very important, I believe. What are the benefits of working with freight forwarder, and when should a business consider hiring one? कब इनको हायर करना चाहिए और ये क्यों इम्पोर्टेंस है फ्रेट फॉरवर्डर? See, freight forward, there are two things. Like, if you get an order, like initially, if you are able to grab any order of an export shipment, पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनाना होता है, बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, आपको कस्टम्स में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो राइट. दिस थिंग्स आर नॉट वेरी हार्ड, दिस आर इजी, बट इफ यू ट्राई टू डू इट ऑन योर सेल्फ इट विल बी हार्ड फॉर यू बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम। सो ये सारा काम बहुत मिनिमल पैसे में होता है। यू कैन हायर ए CHA फॉर डूइंग ऑल दिस एंड ही विल गेट इट डन विद इन ए वीक्स टाइम। तो ये आपका एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया तो आप वो पर्टिकुलर पोर्ट से अपना एक्सपोर्ट शिपमेंट चालू कर सकते हो। उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग का इन्वॉल्वमेंट कहाँ आता है, क्योंकि यू यू आर न्यू एंड यू डोंट नो हाउ टू बुक द वेसल। आपका शिपमेंट कौन से रूटिंग से, कौन से जहाज से कहाँ जाएगा, अगर छोटा शिपमेंट तो एयर फ्रेट करना है तो कौन से एयरलाइन से कैसे जाएगा, देयर आर नॉर्म्स। तो करेक्ट. वो हिसाब से फ्रेट फॉरवर्डिंग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है कि फ्रेट फॉरवर्डर आपको 4 5 अलग अलग शिपिंग कंपनी से रेट नेगोशिएट करके दे सकता है। ही विल पुट हिज एक्सपर्टीज एंड उनका अगर रेगुलर शिपमेंट है तो उसमें आपकी शिपमेंट भी चली जाएगी वही कम रेट में। इसमें और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उसमें पैकेजिंग भी बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल हम जैसे पैक करते हैं वैसे नहीं, एक्सपोर्ट पैकेजिंग अलग लेवल की होती है, अलग टाइप का होता है, एंड एवरी कंट्री हैव देयर ओन नॉर्म्स। तो उसमें आपको फ्यूमिगेशन करना है नहीं करना है, कुछ प्रोडक्ट्स को आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन लगता है। आपने माल भेज दिया और बाद में ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, कस्टम में माल फंस गया, उधर ही 1 महीना पड़ा रहा तो आपका डिटेंशन डैमेज वगैरह सब आएगा। तो CHA एंड फ्रेट फॉरवर्डर आर द पीपल हु विल गाइड यू एग्जैक्टली आपके आइटम के हिसाब से कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सो दैट ऑल द शिपमेंट गो स्मूथली। आप उधर एक बार शिपमेंट आपका डॉक्स में पहुंचेगा तो उसके बाद में आपका वहां से तुरंत लोड हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए विथ ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड विथ द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इन रीजनेबल रेट। ओके. तो मेरा इसके लिए मतलब आई विल एडवाइस कि इट इज बेटर नॉट टू डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन, क्योंकि इफ यू आर एन एक्सपोर्टर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन एक्सपोर्ट, not करेक्ट. on the CHA part or not on the freight forwarding part. करेक्ट. करेक्ट. Let them करेक्ट. do their own work. करेक्ट.
So great advice. Thank you again, Mr. Jemse. And I believe my viewers are watching. And if you really want to start your import-export business, Mr. Jemse is can take care of CFA and freight forwarding things. I will Yes, mention his contact numbers, email IDs in my blogs. And thank you thank you so much. again. I hope my viewers got very valuable information. We will keep continue like this more episodes. Now we have a very limited time. We will invite again Mr. James for all live things like maybe training or something, depend on his schedule. And thank you once again. Thank you, Okay, okay. Mr. No James. problem. It Bye was bye. nice talking to you, and thank you very much for having me here. If you have any more queries or anything, if your viewers have any more queries, I will be more than happy to answer them Right. on the channel itself or however by any means. No problem. I'm always there to help you out for anything. Thank you very much, Sushant. It was really nice talking to you, and thanks again for having me here. See you next time. Bye bye. Yeah, bye bye. Thank you. Have a good day. Bye bye.